یسوع مسیح کے عظیم ببرکت جلالی پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج میرے ساتھ دیکھیں خدا ان کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں مقدس پالوس رسول کی طرف سے مقدس کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا عام خط ہے اور اس کا 15واں باب اور اس کی ورس نمبر 58 58ویں آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. 58 آیت ہے 15واں باب کرنتھیوں کا. کلام خدا میں کچھ مرقوم ہے. بس اے میرے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور قائم رہو اور خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا ان میں بے فائدہ نہیں ہے. آمین. خدا ان کا زندگی بخت کلام پر سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. ہاللویا. تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت شام کے لیے کہ خدا نے ہمیں خوبصورت موقع دیا تاکہ ہم بیٹھ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. اس کو خوبصورت وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع میں وہاں پر موجود ہوں. تو بادشاہوں کا بادشاہ موجود. ہم زوردار تعلیم سے زوردار تعلیم. تو میرے عزیزو، میں جب بھی کلام کو پیش کرتا ہوں یہی کہتا ہوں آپ کلام کو توجہ سے سنیں، کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا، سننا مسیح کے کلام سے. ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کلام سننے سے. اور اس کے باوجود جو اگنور کرتے ہیں، نہیں سنتے، بیٹھے ادھر ہیں، ذہن کہیں اور ہے. تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو کان پھیر لیتا ہے خدا کے احکامات کو، اس کی شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں تو خدا تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں. تو جب وہ بات کرتا ہے تو پادری سفیان نہیں، نہ ہی پاسٹر ڈیوڈ صاحب، نہ ہی کوئی اور فادر یا بشپ، بلکہ ڈائریکٹ خدا یسوع مسیح آپ سے بات کرتا ہے. اور بائبل فرماتی دانشور بندہ اس کی بات کا لحاظ رکھتا ہے. احمق نہیں رکھتا، دانشور ضرور رکھتا ہے. تو آپ سب لوگ اہل دانش ہیں، اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللویا. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے خدا کے خادمین کی رسپیکٹ کے تعلق سے. اور کوئی بھی کام جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں وہ بے فائدہ نہیں ہے، وہ بیکار نہیں ہے. خدا چیزوں کو یاد رکھتا ہے. خدا کیلکولیٹڈ خدا ہے. انسان ہوتے ہوئے، جیسے میں مثال دوں تو ایلڈر امتیاز صاحب ایک پرچون کی دکان جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو وہ اس کا آڈٹ کرتے ہیں، اس کا حساب رکھتے ہیں، اس کے اندر کیا پروفٹ آیا، کیا لاس ہے، اس کا حساب رکھتے ہیں. اس طرح سے بڑی سے بڑی کمپنی ہے، انہوں نے اپنے اکاؤنٹنٹ بٹھائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اپنے ایڈیٹر بٹھائے ہوئے ہیں تاکہ کمپنی کا اچھے طریقے کے ساتھ حساب کتاب کیا جا سکے. تو اسی طرح جو بھی کام ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو کر جیسے امن صاحب میٹنگ لیڈ کر رہے ہیں، یا کوئی پرستش کر رہا ہے، یا کوئی گیت گا رہا ہے، یا کوئی تالیاں بجا رہا ہے، یا باہر کو جوتے ہی درست کری جا رہا ہے، تو یقین مانیں انسان ہوتے ہوئے جب ہم چیزوں کا حساب رکھتے ہیں تو وہ ہمارا خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کیلکولیٹڈ خدا ہے. وہ بھی چیزوں کو یاد رکھتا ہے، وہ چیزوں کو بھولتا نہیں ہے. متی 10ویں باب کے اندر خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میرے خادم کو یہ جانتے ہیں وہ میرا ہے اور میرے کام کے لیے نکلا ہے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی کا بھی پلا دے گا تو وہ اس کا اجر بھی نہ کھوئے گا. وہ اس کا اجر بھی نہ کھوئے گا. جو آپ خدا کی بادشاہی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ نہ سوچیں شیطان آپ کو کہے کہ خدا تینوں بڑا یاد کر رہے ہیں، تیرے کمان کون یاد کر رہا ہے، تیرے تو کوئی اپریسیشن نہیں دے سکتا. ابلیس ایسی باتیں ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس بات کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں خدا چیزوں کو یاد رکھتا ہے. ہاللویا. اور پھر خدا جو ہے، جو آپ خدا کے خادموں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو خدا کے خادمی جو خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہیں. کلام خدا کے اندر کیا لکھا ہے؟ میں نے تمہیں چنا اور مقرر کیا تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. خدا ہمیں مقرر کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے لیے کام کر سکیں. خدا چیزوں کو یاد رکھتا ہے، وہ فراموش نہیں کرتا. مثال کے طور پر جیسے میں کمپنی کے اندر جاب کرتا ہوں تو میری کمپنی مجھے ٹائم پر سیلری دیتی ہے، مجھے فیول کارڈ دیے ہیں، ہمیں علی صاحب بھی بیٹھے میرے دوست، تو ٹائم پر ہمیں سیلری دیتی ہے. ہمیں اولڈ ایج بینیفٹ کارڈ دیے ہوئے، انہوں نے میڈیکل کارڈ دیے ہوئے ہیں جی، اور بھی بہت سی سہولتیں ہیں. تو اسی طرح سے میں
आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया का जो मालिक है, दुनिया का जो अफसर है, वो अपने मालिक को अच्छी से अच्छी अपना एम्प्लॉय को अच्छी से अच्छी सहूलत देता है। तो इसी तरह जब हम खुदा के लिए कोई काम करते हैं तो क्या खुदा चीज़ों को फरामोश कर देगा? क्या खुदा याद ना रखेगा? जब हम खुदा के लिए खिदमत के लिए निकलते हैं तो क्या खुदा करूँ हमारी मदद ना करेगा? वो हमें रूह कुदस की नेमतें ना देगा? वो रूह कुदस के फल हमारे अंदर पैदा ना करेगा ताकि हम जाकर खुदा के लिए अच्छे और मौसर अंदाज में खुदा की खिदमत कर सकें? खुदा चीज़ों को याद रखता है। तो यहाँ पर पौलुस रसूल भी रूह कुदस की तहरीक से कलीसिया को ये बता रहा है कि तुम्हारी मेहनत जो तुम कर रहे हो ये खुदा में बेफायदा नहीं है। तो खुदा चीज़ों को याद रखता है। आए कलाम खुदा में से हम देखेंगे पहली सलातीन, वहाँ पर खुदा के खादम अलीशा नबी की मिसाल आपके सामने रखूंगा। वहां पर एक औरत है जिसने खुदा के खादम की खिदमत की है, ये जानते हुए ये खुदा का है। तो फिर खुदा ने भी चीजों को याद रखा है और उसकी जिंदगी में बरकत को नाजिल किया है। ये हकीकत है। कलाम में कोई अफसाना तो कहानी तो नहीं लिखी, सच बात है कि नहीं? सच्ची बात है ना? आप इस पर ईमान रखते हैं? हालेलुया। हाँ जी, कलाम खुदा में से देखिए जरा दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत कि खुदा चीज़ों को याद रखता है। हम ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जब हम खुदा के खादमों की खिदमत करते हैं तो खुदा चीज़ों को याद रखता है और खुदा हमें बरकत देता है, हमें बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाता है। हाँ जी, अब अपना कोई मेरे साथ पढ़े जरा 8वीं आयत से। अच्छा जी, पढ़े जरा। हाँ जी, अमन आप पढ़े। और एक रोज ऐसा हुआ कि हाँ जी, अलीशा शोनीम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी जी, और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। हाँ जी, फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता हाँ, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। हाँ जी, तो उसने अपने शोहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस हाँ जी। है। यहाँ पर क्या लिखा है? एक अलीशा नबी है और वो शनीम को गया है। इस औरत का नाम यहाँ पर कलम बंद नहीं है, जैसे पाकिस्तान में रहने वाला हर फर्द पाकिस्तानी कहलाता है, इसी तरह ये औरत शनीम की रहने वाली है। तो इस औरत के लिए लिखा है शनीमी औरत जो दौलतमंद थी और उसने खुदा के खादम अलीशा नबी को अपने घर में उतारा है ताकि वो आकर रोटी खाए। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है तो जब कभी वो वहां से गुजरता तो रोटी खाने के लिए उधर ही चला जाता। और उस औरत ने, शनीमी औरत ने अपने खामन से कहा कि ये जो बंदा है मर्द खुदा, ये मुझे भला मालूम होता है, तो हम इसके लिए कुछ काम करते हैं। औरत जो है, जैसे पास्टर साहब ने पिछली मरतबा जब कलाम सुना रहे थे कि घर के अंदर को अगर मर्द को आता है तो सबसे पहले औरत तो उसको जज करती है कि उसकी आंखें कहाँ हैं, क्योंकि खुदा के जो लोग होते हैं उनके उठने बैठने से, उनके बोलने चालने से, उनके रवैयों से ये पता चलता है कि ये खुदा के खादिम है। अगर कोई उस तरह के लोग आ जाएं तो उनकी आंखें कहीं और होती हैं, बैठे वो कहीं और होते हैं, तो औरतें जहाँ वो जज कर लेती हैं। तो ये औरत जो है, ये समझदार औरत है, इसने सारा कुछ देख कर इसने अपने खामन से कहा है कि ये शख्स मुझे भला मालूम होता है, ये मर्द खुदा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हाँ जी, उसने क्या कहा जी आगे? हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना देते हैं। दीवार जैसे पारी साहब बता रहे थे कि ये 9 इंच की या 6 इंच की दीवार नहीं, वहां पर बड़े बड़ी दीवारें होती थी शहरों के गिर्द पहले, जिन पर कई रथ से मुराद घोड़े और उनके साथ जो टांगे वो भाग सकते थे। तो वहां पर लिखा कि दीवार पर उसके लिए छोटी सी कोठरी बना दे अलीशा नबी के लिए। वो शनीमी औरत अपने खामन से कह रही है। हाँ जी, आगे क्या लिखा जी? और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगाएं। हाँ जी, एक पलंग और एक मेज, एक चौकी और शमादान लगाएं। आगे जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। वो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और हाँ। उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। हाँ जी, फिर उसने अपने खादम जहाजी से कहा जी। कि इस शनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई जी। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तू उससे पूछ के तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रे की, तू तो तेरे लिए क्या
کیا کیا؟ यहाँ पर लिखा है कि खुदा का खादिम एक मतलब फिर वहां पर गया है और जाकर अपने खादिम जाजी से कहा है कि इस औरत ने हमारे लिए इस कदर फिक्रें की है, तो इससे पूछ इसके लिए क्या किया जाए। बादशाह से इसके सामने दरखास्त की जाती है ताकि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, या कोई 2 पुलिस वाले इसके साथ लगा दिए जाए ताकि इसकी मुहाफजत पर होने के मामूर रहे। तो वो औरत आगे क्या कहती है, क्या तू चाहती है कि बादशाह या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? हाँ जी, उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। हाँ जी। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या उस किया? औरत ने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहता हूँ। ये जो बादशाह हैं, जो अफसरान हैं, ये तो मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कलाम में पहले कहा वो तो दौलतमंद थी, तो दौलत वाले बंदे को केड़ी शादी लोड़, हर चीज उसके पास है। तो एक चीज उसके पास, आगे क्या लिखा है जी, फिर क्या हुआ। तब जहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शोहर बूढ़ा है। हाँ जी। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पर पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा हो। क्या हुआ, जब उसको बुलाया गया तो खुदा के खादिम जाजी ने कहा है कि मालिक सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके पास औलाद नहीं है। पैसा से जो चीजें खरीदी जा सकती हैं वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन जो चीज नहीं खरीदी जा सकती, जिसका देने वाला कौन है जी, खुदा है। जिसकी बाबत हम ये पढ़ते हैं कि देखो औलाद खुदा की तरफ से और पेट का फल उसी की तरफ से, हम ये खरीद नहीं सकते अपनी मर्जी से। बंदे के पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन वो ऐसी बातें भी हैं जो खुदा के कब्जे में है, उसको इंसान अपनी मर्जी से खरीद नहीं सकता जब तक खुदा की मेहरबानी ना हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, उसने कहा दुनिया का सारा माल उसके पास है, लेकिन एक चीज उसके पास कोई औलाद नहीं है। उस खुदा के खादिम को ये मालूम हुआ। आगे क्या लिखा है जी। उसने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, हाँ जी। ऐ मर्दे खुदा, अपनी लोंडी से झूठ न खुदा कह। के खादिम ने उसको कहा कि तेरी औलाद होगी, तेरी गोद में बेटा होगा। औलाद में नहीं कहा, क्या होगा जी, बेटा होगा। ये नहीं कहा बेटी होगी, बल्कि क्या होगा, तेरे आने वाले वक्त में मुकर्रा पर तेरी बेटा होगा। हालेलुया। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि जब हम खुदा की खिदमत के लिए निकले हैं तो दुनिया का मालिक अपने एम्प्लॉय को अच्छी से अच्छी सहूलत दे सकता है, तो जब आसमान की खिदमत के लिए निकले हैं तो क्या वो हमारी मदद ना करेगा कि नहीं। उसका वादा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, मैं तुमसे हर किस दस्तबरदार ना ही कभी की तरह। बात हम करते हैं, बात पारी साहब करते हैं, दुआ करते हैं, पीछे कौन खड़ा है जी, खुदा। वो अपने नाम की गैरत रखता है, वो आज भी काम करता है, उसका वादा है। मसीह का राज मर गया बताते, खुदा के खादिम ने कह दिया है मान करके कि जो मैं कहता हूँ होगा। औलाद ही नहीं, बेटी नहीं, बल्कि तेरे बेटा होगा। जो तूने मेरे लिए इस कदर किया है, तो मैं भी तो तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ कि मेरा खुदा जोरावर खुदा, मैं उसी के नाम से कहता हूँ कि आने वाले मौसम बहार के अंदर तेरे बेटा होगा। तो ऐसा ही हुआ। क्या लिखा जी। सो वो औरत हामला हुई। हाँ जी। और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। हाँ जी। क्या हुआ जी, उसके बेटा भी हो गया, उसके बेटा भी। आगे कलाम में खुदा के लिखा है कि वो बेटा बड़ा जवान हुआ, अपने बाप के साथ खेत के अंदर काम करने के लिए गया है, और कलाम में खुदा के अंदर लिखा है कि एक ऐसा दर्द उसके सर के अंदर हुआ है, और वो बेटा जो है उसको उसकी माँ के पास लेकर आया गया, और माँ ने जो कुछ वो करना चाहती थी, माँ जिस तरह वो कर सकती, उसने वो सारे काम किए, लेकिन बाइबल बताती है कि बेटा जो है वो जिंदा नहीं रह सका, बल्कि वो मार गया। वो क्या हो गया जी, मार गया। अब खुदा की बंदी ने क्या किया है, वो रोई नहीं, बेटा उसके हाथ में मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसको उसने लटा दिया है। वो इसी कमरे के अंदर जहां पर खुदा का खादिम अलीशा नबी जाकर रहता था, जहां पर आकर वो आराम किया करता था, उसी पलंग पर लटाकर जो है वो वहां पर किधर चली गई जी, अलीशा नबी की तलाश में। कहां पर चली गई बाजी, मेरी बात सुनिए जरा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੇਸ਼ਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, 9ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫੋਕਸ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫੇਲ, क्यों जी। तो जे ध्यान ही ना आया तो फिर अभी फेल हो जाएंगे ना। ईमान सुनने पर सुनना सीखे। तो आप जब कलाम हो रहा है तो खुदा से बात कर रहे, तो आपने अपना ध्यान, अपना कॉन्सेंट्रेट खुदा के कलाम की तरफ करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका बेटा
मर गया। अब वो रोई नहीं भाइयों बहनों, वो रोई नहीं मानी, वो भाग कर खुदा के खादिम की तरफ चली गई है। उसका ईमान बड़ा जबरदस्त है। उसने ये शायद सुन रखा हो कि इसका जो उस्ताद है एलिया, उसने सारपत की बेवा के बेटे को जिंदा किया था, और अलीशा के लिए आप जानते हैं कि रूह का दुगना मसा उस पर है। एलिया ने 7 मोर्चे किए हैं, अलीशा ने 14 मोर्चे किए। उसने एक मुर्दे को जिंदा किया, उसका जो उस्ताद है एलिया, उसने 2 को जिंदा किया। आप जानते हैं जब उसको कब्र के अंदर रखा गया तो उसकी जो हड्डियां एक पहले से फौजी की पड़ी हुई थी, उसको जब रखा गया तो उसकी बॉडी से टकरा कर वो बंदा जिंदा हो गया। हालेलुया, उसके हड्डियों से टकरा, ऐसा वो खादिम है। हाँ जी, हालेलुया। तो क्या हुआ है, वो रोई नहीं भाइयों, वो भागी है कि खुदा का खादिम की तलाश के अंदर वो निकली है, रोई नहीं है। उसके अंदर एक ऐसा जबरदस्त ईमान है। और खुदा के खादिम ने क्या किया है, अपने खादिम जाजी को भेजा कि जाकर उसको ये ऐसा लगाओ, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो कलाम खुदा कह रहे शनी में औरत ने कहा, भाई मैं मुझे खुदा की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चल कर जाकर मेरे बेटे को क्या कर, जिंदा कर। हालेलुया। तो कलाम खुदा के अंदर क्या लिखा है, अलीशा वहां पर गया, उसने खुदा से दुआ मांगी, और जब उसने दुआ मांगी तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि बेटा जो है वो जो मर गया था वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका ईमान कैसा है कि जो जिंदगी जो दे सकता है वो वापस भी ले सकता है, और जिसने दिया है वो वापस भी दे देगा। हालेलुया। उसका ये जबरदस्त ईमान था। तो उसने खुदा के लिए ये खुदा के खादिम के लिए छोटे छोटे काम किए, कोठड़ी बनाई, क्षमादान, मेज, चौकी रखी। खुदा ने उसके लिए बड़े काम किए, उसको बेटा दिया है, पहले औलाद दी, फिर मरियम को जिंदा किया। और बात यहीं तक ही खत्म नहीं हुई भाइयों कि उसने खुदा के खादिम की खिदमत की है, तो कलाम खुदा कहकर खुदा ने आने वाले वक्तों में भी उसका ख्याल रखा है। आए मेरे साथ देखें जरा, अमन भाई पढ़े जरा 8वां बाब उसकी पहली आयत। बात हम ये सीख रहे हैं कि आप जो भी काम खुदा के लिए करते हैं, खुदा के खादिम को दया देते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको तोहफे तहफ़ देते हैं, खुदा के लिए काम करते हैं, तो यकीन माने खुदा चीज़ों को फरामोश नहीं करता। आप छोटे छोटे काम खुदा के लिए करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं जो बात, खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। खुदा चीज़ों को फरामोश नहीं करता। क्या लिखा जी आगे, बात यहीं तक नहीं खत्म हुई, उसके बेटा दिया, फिर उसको मरे को जिंदा किया, फिर आगे क्या हुआ है जी। और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जलाया था, हाँ जी, ये कहा था कि उठ और अपने कुंबा समेत जा, और जहाँ कहीं तू रह सके वही रह। हाँ, क्योंकि खुदावन ने काल का हुक्म दिया है, और वो मुल्क में 7 बरस तक रहेगा। अभी खुदा का कलाम फिर अलीशा नबी पर नाज़िल हुआ है कि उस शनीबी औरत को खुदा ने फरामोश नहीं किया, उसको याद रखा है कि इस मुल्क फलस्तीन के अंदर काल पड़ने वाला है, और काल भी बड़ा जबरदस्त 7 साल के अंदर वो रहेगा वहां पर वो काल, क्योंकि वो खुदा के खादिम की खिदमत करती रही है। खुदा का खादिम उस घर से आसूदा होता रहा, तो खुदा ने चीजों को याद रखा है। खुदा ने फिर अलीशा नबी को वहां पर भेजा कि जाकर उसको बता दे कि इस मुल्क के अंदर काल पड़ने वाला है, और यहाँ से अपने कुंबे को लेकर निकल जा। और काल भी ऐसा नहीं, काल भी बड़ा जबरदस्त। आप पढ़े मेरे साथ पिछले अबवाब के अंदर कि काल ऐसा है कि लोग बिठा खान लग पे, अल्टर साहब खोते वड खान लग पे, इवन के बच्चे, अपनी औरतें जो है अपने बच्चे खाने लग पड़ी इस तरह। या आप मेरे साथ देखें जरा। हाँ जी, पढ़े अमन भाई। उसने कहा, तब उस औरत ने अन्य धीरे से पढ़े, ये जो काल के बारे में पीछे आए जरा, 6 बाब की 25वें से पढ़े। काल भी ऐसा जबरदस्त है नहीं कि आटे का काल है कि मतलब इस दुकान से लभा तो लभ के लभ नहीं रहा, बंदे भुख ना मरन लग पे, चीज़ा लभ ही नहीं रही, ऐसा काल पड़ गया। और सामरिया में हाँ जी, बड़ा काल था। हाँ जी, और वो उसे घेरे रहे, हाँ, यहाँ तक के गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में। हाँ जी, गधा जो जिसको खा नहीं सकते, हराम जानवर, उसका सिर बिकने लगा चांदी के 80 सिक्कों के बस। हाँ जी, और कबूतर की बीट का, कबूतर नहीं बैठे हुए गंडे, 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। हाँ जी, और जब शायद इसराइल दीवार पर जा रहा, हाँ जी, तो एक औरत आई है, औरत दवाई लेके आई है बादशाह ने अगे। हाँ जी,
तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी हाँ और कहा, ए मेरे मालिक, ए बादशाह, मदद कर। हाँ जी उसने कहा, अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहाँ से तेरी मदद करूं? हाँ जी क्या खलियान से या अंगूर के खोलू से? हाँ जी फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? हाँ जी उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा, अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन इसे खाएं। हाँ, आज के दिन हम इस बेटे को खाएं। हाँ जी और मेरा बेटा जो है भूख इन्हीं जिंदा रहने के लिए जानवरों को खा रहे हैं, इवन के अपनी औलाद तक वो काट कर खाने लगे हैं। ऐसा जबरदस्त काल पड़ा है। हाँ जी और मेरा बेटा जो है सो उसे बादशाह को दवाई भी लेके आ गई है। हाँ जी सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया। एक बेटा पका के खा भी लिया। हाँ जी और दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छुपा ਤੇ दिया। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਛੁਪਾਉਣ ਡਈ है। ऐसा जबरदस्त काल पड़ा है। तो यहाँ पर भी खुदा के खादम को वहां पर भेजा गया कि शुनीमी औरत से कह दे कि यहाँ से चली जा, 7 साल तक यहाँ पर काल रहेगा। और फिर क्या हुआ है, वो काल वहां पर पड़ा है और कलाम खुदा के अंदर वो औरत जो थी वो 7 बरस के बाद 7 बरस तक वहां से निकली गई और 7 बरस के बाद जब वापस आई है तो ना उसका घर रहा है ना उसकी जमीन रही है। और वो बादशाह के सामने दरखास्त लेकर गई है कि बादशाह कि मुझे क्या हो जाए, मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाए, मेरा घर मुझे वापस मिल जाए। क्योंकि जब काल पड़ा, जगह वीरान है तो लोगों ने कब्जा कर लिया, घर भी कोई नहीं, जगह भी कोई नहीं। तो वहां पर कलाम खुदा के अंदर क्या लिखा है, जहाजी जो है इससे पढ़े जरा चौथी आयत से, उस वक्त बादशाह मर्दे खुदा के खादिम जहाजी से बातें कर रहा हाँ। और ये कह रहा था कि जरा वो सब बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे बता। क्या बादशाह जो उस वक्त का बादशाह है जो फलस्तीन का, वो ये कह रहा है कि बादशाह के जो बड़े बड़े काम जो अलीशा नबी ने किए, मुझे उनका जिक्र, मुझे उनके बारे में बता। तो जहाजी उन बड़े बड़े कामों का जिक्र कर रहा है। और कलाम खुदा के ऐसा हुआ, आगे लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दे को जलाया तो वही औरत जिसके बेटे को उसने जलाया था आकर बादशाह के हुजूर अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। हाँ, जब वो बादशाह को ये बात सुना ही रहा था तो उसी टाइम वो शुनीमी औरत जो है वो वहां पर एंटर हुई है बादशाह के महल के अंदर। इंसाल 2 के अंदर लिखा है कि खुदावंद साधकों के लिए मदद तैयार रखता है। जब आप खुदा पर तकिया करते हैं, उसके खादमों की खिदमत करते हैं, तो खुदा आपके आने वाले वक्त में भी आपको आपके हाथों को कामों को क़याम बख्शता है। वो आपके रास्तों को हमवार बना देता है जब हम खुदा के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, जब वो बात कर ही रहा था तो वो शनीमी औरत दाखिल हुई और वो बता रहा था कि उसने मुर्दे को भी जो है वो जिंदा किया। और कलाम खुदा के तब जहाजी बोल उठा, हाँ जी, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, यही वो औरत है हाँ जी, और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जलाया था। हाँ जी। जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। अब बादशाह ने तस्दीक करने के लिए दोबारा शुनीमी औरत से पूछा, वाकई ऐसा मामला हुआ था, कोई ऐसी बात हुई थी? तो उसने कहा जी हाँ जी, ये वाकया हुआ था। आगे क्या लिखा है, तब बादशाह ने एक ख्वाजा सराय को उसके लिए मुकर्रर कर दिया, हाँ जी, और फरमाया कि सब कुछ जो इसका था और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा, हाँ जी, उस वक्त से अब तक की खेत की सारी पैदावार उसको फिर दे। एक बादशाह ने एक सिपाही मुकर्रर कर दिया, एक बंदा मुकर्रर कर दिया, तो जाके कह दिया भी जिते सी जमीन सी इधर का घर सी वापस दिता जाए। लेकिन तो बादशाह का नौकर जाएगा, अफसर जाएगा तो जमीन भी मिलेगी, तो जमीन के नाल बादशाह ने भी कह दिता है कि जमीन 7 साल जिन्नी पैदावार होनी चाहिए थी, अगर एक किले जो 60 माणे सी, 50 माणे, 30 माणे, तो वो भी उन्होंने पैदावार वापस की थी। जब आप खुदा के लिए काम करते हैं छोटे छोटे, तो खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। मेरे साथ देखिए जरा, पीछे है जरा, क्या हुआ है जी, अमन भाई पढ़े जरा 10वीं आयत से, यही चौथा बाब है। इस औरत ने खुदा के खादम के लिए 5 छोटे छोटे काम किए। कितने भाई छोटे काम किए? 5। तो क्या हमने उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी बनाई उसने, नंबर 1, हाँ जी, दीवार पर बना दे, हाँ जी, और उसके लिए एक पलंग, नंबर 2 पलंग, और मेज, नंबर 3 मेज, और चौकी 4, और शमादान लगा दे, और शमादान 5। तो खुदा ने उसके लिए कितने बड़े काम किए जी? उसने खुदा के खादम के लिए 5 छोटे छोटे काम किए।
تو خدا نے اس کے لیے کتنے کام کیے بڑے بڑے. نمبر 1 اس کو اولاد دی. نمبر 2 اس کے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کیا. نمبر 3 اس کو کال سے بچایا. نمبر 4 اس کا گھر اور اس کی جو زمین تھی اس کو واپس دلائی گئی. اور نمبر 5 جو 7 سالوں کے اندر جو پیداوار ہونی تھی جس کے اندر وہ کال کے اندر وہ اس شہر کو چھوڑ گئی تھی, اس علاقے کو چھوڑ گئی تھی, وہ 7 سالوں کی پیداوار بھی سے واپس کی گئی. ہاللیلویہ. اس نے خدا کے خادم کے لیے چھوٹے چھوٹے 5 کام کیے, خدا نے اس کے لیے 5 بڑے بڑے کام کیے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو چیزوں یاد رکھیں کہ جو بھی کام آپ خدا کے لیے کرتے ہیں خدا چیزوں کو فراموش نہیں کرتا, خدا چیزوں کو یاد رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اس عورت نے کیے, خدا نے یاد رکھا اور اس کو اسی کاموں کی بدولت خدا نے اس کو ملٹی پلائی بلیسنگ دی ہے. خدا آج بھی وہی خدا ہے, آج بھی ویسا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بہت سے لوگوں نے محاذرائی بنائی ہوئی ہے, وہ آدمی کے خلاف وہ بولتے رہتے ہیں, دیتے دوتے وہ ہے کچھ نہیں. ہاں جی, جو دیتا ہے وہ نہیں بولتا, جو کچھ نہیں نہ دیتے وہ بھی بولتے رہتے ہیں. سڑیل جیلسی, جیلسی ہے نا, یہ اچھی بات تو نہیں ہے. وہ انہوں نے یہ اس طرح کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے. حالانکہ کلام میں تو اگر وہ ہمیں بائبل سکھا رہے ہیں تو کلام میں تو یہ لکھا ہے الزام نہ, تو تمہیں بھی الزام نہیں دیا جائے گا. وہ الزام دیتے ہیں, وہ تہمت لگاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھدار ہیں؟ کیا یہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہے؟ خدا کے خادموں کی, خدا کے لوگ آج مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ ان کی عزت کرتے ہیں ہر طریقے سے, تو اس کا ریوارڈ کون دے گا آپ کو؟ خدا. کلام میں لکھا ہے خدا کے خادم 2 چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. تو میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر وہ بہت بڑی کنونشن تھی, تو وہاں پر ایک پاری صاحب نے 2 بندے ہاتھ منگا کے پا دیتے تو کہتا جی کلام جی بھی 2 چند ہی جڑے خادم نے عزت کے لائق ہیں. تو حالانکہ اس طرح ہے ہی نہیں, وہ مودا ہی لگتا کچھ نہیں. کلام میں لکھا ہے یہاں پر انگلش کا اگر آپ ترجمہ کرتے ہو ڈبل آنر, بہت زیادہ عزت کے لائق سمجھے جائیں. خدا یہاں پر تم کے لگاتے رہتے ہیں, ایویں انہیں گالی چھاڑ دی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں جو کھلی آ کے وہ خدا کا مقابلہ کرتے ہیں, حالانکہ بائبل میں یہ آیت ہی کوئی نہیں, اپنے طریقے سے وہ بات سنا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں. تو ایسے لوگوں کو اس طرح سے ان باتوں سے پریز کرنا چاہیے کہ جو لوگ خدا کے خادموں کو بلیم کرتے رہتے ہیں, ایک دن وہ اس کا حساب دیں گے. مسیح نے اپنے خادموں کی عزت کی ہے, اپنے خادموں کی عزت کی, اس نے ہماری عزت بڑھائی ہے. ہاللیلویہ. اور اس نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ جاؤ سانپ کو بٹھاؤ, بیچھو کو کچھ لو, اور ابلیس کی طرح راستے پر غالب آؤ. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ, جو تمہیں ٹھنڈا گلاس پانی بھی پلائے گا وہ اس کا اجر بھی نہ ہوئے گا. شرومی عورت نے خدا کے خادم کے لیے 5 چھوٹے چھوٹے کام کیے, خدا نے اس کے لیے 5 بڑے بڑے کام کیے. خدا آج بھی ایسا ہی خدا ہے اور ایسے ہی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آزما کر دیکھے خدا ان کیسا مہربان ہے. مجھے اور آپ کو اس کلام کو